Hello kids, welcome to AudioTUS. In today's video, we are going to continue with the Chapter 3, that is Atoms and Molecules of Class 9, and the topics we are going to take today is cannot say that it is only in Class 9 because they will be coming in use in all the time whenever you will be doing your studies of chemistry. They are the ions, valencies, and the next is very important after understanding these two ions and valencies is how to write the chemical formulas. You know the name of the compound, but how to write its formula? That comes as a big question in the mind. So today we are going to understand the complete process कि chemical formulas को कैसे लिखते हैं when we know the name. Fine. Before that, we'll understand ions and valencies and little bit part about the molecules. Fine. So moving on. First, the thought. That it says that every man is an architect of his own future. इसका मतलब क्या है कि हर एक इंसान अपने फ्यूचर को बना सकता है. That means आप अपना फ्यूचर जैसा भी बनाना चाहे वो सिर्फ आप ही बना सकते हैं. That means उसके लिए एफर्ट्स भी आप ही को करने होंगे और टारगेट्स, एम्स ये सभी पहले प्लान करना और उनको अचीव करने के लिए एफर्ट्स भी आप ही को लगाने होंगे. फाइन. Okay, before we move further in this video, we have to understand that when we had discussed in previous classes that there are several different types of elements. Fine, we divided them into metals, non-metals, metalloids, and depending on their different properties. But when we talk about all the elements, how do they exist in nature? We have studied that none of them, we cannot say none of them, but yes, 90%, more than 90% of them does not exist as a single atom. Fine, that means they are not found in a nascent form. जैसे हम ऑक्सीजन की बात करते हैं, nascent ऑक्सीजन नहीं मिलती है. मतलब आपको एक सिंगल एटम ऑक्सीजन का नेचर में नहीं मिलता है. How it is found? It is found as a molecule. And what are these molecules? जब हम molecules की बात करें, molecules are what? These are the groups of two or more atoms that are chemically bound together by attractive forces. Okay? कि एक दूसरे से chemically bounded होते हैं, जुड़े होते हैं एक strong attractive forces से. Fine? Force से. और आप इसको और कैसे define कर सकते हैं हम इसे? It is the smallest particle of independent existence. ये वो smallest particle है जो कि independently exist कर सकता है nature में. Fine? And ये एग्जिस्ट करने के साथ साथ उस सब्सटेंस की प्रॉपर्टीज को भी शो करता है जिसका ये मॉलिक्यूल है. फॉर एग्जाम्पल दैट इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द वाटर मॉलिक्यूल और आई एम टॉकिंग अबाउट द ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स, बोथ ऑफ दे विल शो द प्रॉपर्टीज ऑफ ऑक्सीजन एंड वाटर मॉलिक्यूल विल शो द प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर itself. Fine. Let's understand a little bit more. The molecules can be of these two broad categories. There are molecules of elements. There are molecules of compounds. Fine. So हमारे पास दोनों चीजें हैं, molecules of elements भी हैं and molecules of compounds भी हैं which are found in nature. Fine. अब इसमें हम बात कर सकते हैं molecule of element की. तो हमारे पास ये हाइड्रोजन molecule है. It is written a little bit lower, beta. Take care, okay? And oxygen molecule is also there. We have nitrogen molecule here. We have the ozone molecule also in the nature. Fine. You can understand here that these molecules are made up of atoms of one type of element only. Fine. जैसे हाइड्रोजन एलिमेंट की बात करें तो हाइड्रोजन एलिमेंट एग्जिस्ट एज ए हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जिसमें N2 है. Fine. ऑक्सीजन एग्जिस्ट एज ए O2 that is oxygen gas and O3 gas as also that is ozone gas. Fine. So these are the molecules of element. When we talk about molecules of compound, इसमें आता है हमारे पास water molecule. Just an example, carbon dioxide molecule, this is glucose molecule. There are so many molecules in nature. Fine. अगर हम बात करें इनका तो अब molecule की बात करें तो ये जो H2O है, this is one entity और chemical species जिसको हम कहें जो कि independently exist कर सकता है nature में. So this one is called as a molecule of a compound. अभी nature में बहुत सारे molecules होते हैं water के. It is not just one molecule. Fine. So if we have to put a numbering, if I have to, for example, in a chemical reaction, for example, 5 or 6 and molecules are taking part, तो हम उसके नंबर को यहाँ denote कर देते हैं, like a 5. For example, here you can see
Imagine in any reaction 6 carbon dioxide molecules are taking part. So I will mention the 6 here, that 6 molecules of carbon dioxide are taking part. Fine. So this way we can denote the molecules and we can talk about the different types of molecules. Hope the molecules are clear to you. Fine. Now next we have discussed this earlier also, that what are compounds. Fine. Compounds we have discussed that they are formed जब 2 or more different types of atoms एक definite proportion और ratio में जुड़ते हैं तो बनाते हैं compound. Fine. But we need to understand how. If you want to see it, observe. We have observed it earlier that when the one molecule of oxygen will join with the 2 molecules of hydrogen here, then the water molecule is formed. When we talk about here carbon dioxide, we can say when one carbon atom will join with the 2 atoms of oxygen here, then the carbon dioxide is formed. Similarly, different types of compounds are formed in nature. Fine. Moving on further, when we talk about the compounds, we need to understand few more things. That what happens in a compound. When we talk about compound, we need to understand that the atoms in that compound are joined in a fixed ratio or proportion of what? It is the ratio or fixed proportion of mass. Okay, atoms जो होते हैं वो fixed ratio में जुड़ते हैं. Sorry, this is not n. A fixed ratio of by mass. ओके, मास का फिक्स रेशियो होता है. फॉर एग्जाम्पल, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल. अगर हम बात करते हैं वाटर मॉलिक्यूल की, तो वाटर मॉलिक्यूल में क्या होता है? देयर इज अ हाइड्रोजन एटम, देयर आर ऑक्सीजन एटम्स. नाउ हाइड्रोजन एटम इज, द मास ऑफ हाइड्रोजन इज 1. हम हाइड्रोजन का मास कितना मानते हैं? 1, बिकॉज इट हैज ओनली 1 प्रोटॉन व्हिच इज देयर. सो हम यहाँ पर हाइड्रोजन का मास मान के चलते हैं 1. इट्स एटॉमिक नंबर इज ऑल्सो 1 एंड मास इज ऑल्सो 1. इट हैज अदर आइसोटॉप्स ऑल्सो, बट हम नॉर्मली वाटर के केस में 1 लेके चलते हैं. अगर हम बात करें ऑक्सीजन की, यू आर अवेयर दैट ऑक्सीजन का हमारा एटॉमिक नंबर होता है 8 एंड मास होता है 16. अब देखिए, अब अगर हम बात करें वाटर मॉलिक्यूल की, सो हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट ऑफ हाइड्रोजन? 2. तो हमने ले लिया है 2 मास ऑफ हाइड्रोजन एंड हमारा 16 यूनिट्स है हमारे मास का ऑक्सीजन का. फाइन. तो ये जो हमारे पास रेशो आ जाता है 2:16 आ जाता है, और इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करके अगर ले लें तो ये हमारे पास आ जाता है 1:8. तो अब हम कहेंगे कि अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 1:8 रेशो मास में जब भी जुड़ेंगे, इट विल फॉर्म वाटर मॉलिक्यूल. ओके, दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड. इसलिए हमने कहा कि जो हमारा कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है, इसमें फिक्स रेशो होता है मास का. वी कैन टेक वन मोर एग्जांपल. फॉर एग्जांपल, लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, मास कितना होगा? 12. अगर हम बात करें, नेक्स्ट हमारा आता है ऑक्सीजन. ऑक्सीजन का 1 एटम का मास हमने देखा है 16 होता है. नाउ अगर हम बात करें कार्बन डाइऑक्साइड के रेशो की, तो कार्बन है 1, ऑक्सीजन है 2, तो हमारा 16 × 2 32 आ गया है. तो हमारे कार्बन डाइऑक्साइड में क्या रेशो है मास का? हमारा है 12:32. इसको सिंप्लीफाई करके हम लिख सकते हैं 3:8. तो जब भी हम कहते हैं कि जो कंपाउंड में अगर हमारा कार्बन एंड ऑक्सीजन 3:8 रेशो में जब भी जुड़ेंगे, कहीं पर भी जुड़ेंगे, दे विल फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल. फाइन. दिस इज हाउ द कंपाउंड्स आर formed, and we need to understand and be very clear about it कि compounds कैसे form होते हैं. Fine. Now that there comes the next very important point, that is what are ions? Ions क्या होते हैं? अब ये नई चीज क्या आ गई है. Fine. Let's understand them. Okay. When we talk about compounds of metals and non-metals, जो कि metals और non-metals के अगर compounds की हम बात करें, तो यहाँ पर जो हमारी कंपाउंड फॉर्म होता है उसमें चार्ज स्पीशीज होती है. चार्ज स्पीशीज क्या होती है? फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बात करें, नॉट दिस पर्टिकुलरली दिस वन, अगर हम बात करें सोडियम क्लोराइड के मॉलिक्यूल की, जिसे हम लिखते हैं NaCl, NaC capital L small. It has come as a join with me, but C is separate and L is separate. Okay, this NaCl exists as 2 ions in its solution. क्या कैसे एग्जिस्ट करता है? दिस Na एग्जिस्ट एज अ पॉजिटिव आयन एंड दिस Cl एग्जिस्ट एज अ नेगेटिव आयन. इसमें क्या होता है कि नॉर्मली जब जो कंपाउंड्स होते हैं, दे आर फॉर्म्ड बाय
शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, गिविंग और टेकिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और जब एक दूसरे को इलेक्ट्रॉन देते हैं और लेते हैं तो दे डेवलप ए स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग विद देम, बिटवीन देम। और उसमें क्या होता है, कई बार एक जो इलेक्ट्रॉन होता है वो दूसरे की तरफ ज़्यादा चला जाता है, तो क्या होता है, जो पहला एटम है इट एक्वायर सम चार्ज। अगर सोडियम से उसका एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा क्लोरीन की तरफ चला गया है तो ये क्या हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज एक्वायर कर लेता है। पॉजिटिव चार्ज आपको पता है कब एक्वायर करते हैं, जब इलेक्ट्रॉन कोई एटम दे देता है और उसमें जो टोटल ओवरऑल चार्ज होगा वो ज़्यादा हो जाता है। कैसे हो जाता है, हमको पता है सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 11। इसका हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा वो क्या आएगा, 2, 8 एंड 1। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास आएगा 1। अब ये 1 इलेक्ट्रॉन अगर दे देता है तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं, 10। इसमें प्रोटॉन कितने होंगे न्यूक्लियस में, 11। तो अब यहाँ पर पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन तो है 11, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन है कितने, 10। तो यहाँ पर हमारे पास जो नेट चार्ज बच रहा है वो कितना बच रहा है, अब इसमें कितने प्रेजेंट है, 11 प्रोटॉन्स प्रेजेंट है जो कि पॉजिटिव चार्ज है, और 10 इसमें हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है जो कि नेगेटिवली चार्ज है। तो इस पर नेट चार्ज कितना आ जाता है, 1 पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। और इसी तरह ये जो हमारा पास Na है, सोडियम है, ये +1 चार्ज एक्वायर कर लेता है। फाइन। और इसी तरह से डिफरेंट आयंस भी फॉर्म होते हैं। जब भी किसी एटम से इलेक्ट्रॉन ले लिया जाता है या दे दिया जाता है किसी एटम के द्वारा, तो वो क्या हो जाता है, वो चार्ज पार्टिकल्स बन जाते हैं, और उन्हीं चार्ज पार्टिकल्स को हम कहते हैं आयंस। फाइन। अगर हम बात करें, जैसे कि हमने कहा है, these charged species are called ions। अगर आप देख लीजिए, सेम इज विद क्लोराइड ऑल्सो, दिस क्लोरीन एंड क्लोराइड आयन हम इसको कहते हैं। दिस क्लोराइड आयन में क्या होता है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 287 है, 287 है। जब ये एक इलेक्ट्रॉन सोडियम से ले लेता है, इसका स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है, बट इसके ऊपर चार्ज आ जाता है, दैट इज नेगेटिवली चार्ज, क्योंकि इसके भी न्यूक्लियस में हमारे इसके पास 17 प्रोटॉन है और इलेक्ट्रॉन हो गए हैं 18। तो इलेक्ट्रॉन का एक नेगेटिव चार्ज इस पर आ जाता है और ये बन जाता है आयन। बट जब तक कि ये एक कंपाउंड में जुड़े हुए हैं तब तक ये क्या है, एक स्टेबल बने हुए हैं। पर जब ये सोल्यूशन में आ जाते हैं तब ये चार्ज पार्टिकल्स की तरह बिहेव करते हैं या आयंस की तरह बिहेव करते हैं। फाइन। नाउ आयंस कैन, अगर हम और फर्दर आयंस को स्टडी करें, आयंस कैन बी सिंगल चार्ज एटम। ये एक सिंगल चार्ज एटम भी हो सकता है, जैसे कि हमारे पास हाइड्रोजन हुआ, हमारे पास सोडियम आयन हुआ। फाइन। ये क्या है, हमारे सिंगल चार्ज एटम्स है, ये हमारा Na+ हो गया। इट कैन बी आर क्लोराइड आयन ऑल्सो, Cl नेगेटिव आयन ऑल्सो। फाइन। अगर हम बात करें सेकेंड टाइप के कैटेगरी की, सॉरी इट इज बिकम द A and B, B and A। अगर हम बात करें तो इट कैन ऑल्सो बी ग्रुप ऑफ एटम्स दैट हैव अ नेट चार्ज ऑन देम। Ions can also be a group of atoms। Ions क्या हो सकते हैं, वो एक ग्रुप ऑफ एटम्स हो सकता है जिसने चार्ज एक्वायर कर लिया हो, जिसके ऊपर चार्ज आ रहा हो। कैसे, फॉर एग्जाम्पल दिस हाइड्रोक्साइड आयन, OH आयन, ओके, इस पे एक नेगेटिव चार्ज है, यू कैन सी हियर दिस इज नेगेटिवली चार्ज। ये है हमारा अमोनियम आयन, इसके ऊपर हमारा NH4 पॉजिटिव चार्ज है। फाइन। तो इस केस में आप देख सकते हैं कि आयंस कैन बी वन एटम, आयंस कैन बी ग्रुप ऑफ एटम्स, उसको हम ग्रुप आयन। ओके, इसको हम और स्टडी करेंगे। इसको हम बोलते हैं पॉली एटॉमिक आयंस। जिन आयंस के अंदर मोर देन 1 एटम होता है उनको हम बोलते हैं पॉली एटॉमिक, और जिसके अंदर 1 एटम है, मोनो मीन्स 1, मोनो एटॉमिक आयंस कौन से हुए, ये सारे, सोडियम हुआ, हाइड्रोजन हुआ, क्लोराइड हुआ, इसमें क्या है, एक ही एटम प्रेजेंट है, तो ये हमारा हो गया पॉली एटॉमिक आयंस। और नेक्स्ट जो है हमारा ये हो गया मोनोटॉमिक, और पॉलीटॉमिक क्या है, अमोनियम आयन हुआ हमारा, क्लोराइड आयन हुआ, सल्फेट ग्रुप हुआ, सल्फाइड ग्रुप हुआ, ये सब क्या है जिसमें मोर देन 1 एटम्स प्रेजेंट है, वो सब हमारे आ जाते हैं पॉली एटॉमिक आयंस। फाइन। मूविंग फर्दर, अगेन वी कैन ऑल्सो डिवाइड द आयंस ऑन दिस बेसिस दैट कि उनके ऊपर कौन सा चार्ज है। इफ दे आर हैविंग पॉजिटिव चार्ज ओवर देम, इफ दे आर पॉजिटिवली चार्ज तो हम उनको कहते हैं केटायन, और अगर उन पे नेगेटिवली चार्ज आयंस है तो उनको हम बोलते हैं एनायन। जैसे सोडियम, हमारा हाइड्रोजन आयन है, सोडियम आयन है,
सोडियम आयन है ये हमारे कहलाते हैं कैटायन, और हाइड्रोक्साइड आयन, क्लोराइड आयन ये कहलाते हैं एनायन. So these were all the little bit about the ions which you need to know. Okay, now let's understand the common ions and their symbols. कि जो common ions है जो कि normally हमारे chemical formula writing में use आते हैं वो कौन कौन से हैं, because you will need to know their charges and how they are, what they are basically. Fine. So when we talk about the name of ion, we have the common ions here and their symbols. So like sodium, potassium, silver, copper, magnesium. These are all the ions. They are written here in the sequence of their valency. Like first it is a ones which have single charge, then there is a double charge, and there is a triple charge over them. Fine. Similarly here you can talk about these are all metallic ions. These are ions of non-metal elements like hydrogen. Now you can see here, if the hydrogen is giving away the electron, that is hydrogen ion, and if it is taking the ion from someone, it is called hydride ion. This normally doesn't come in so much of use. Normally hydrogen gives away the electron. Fine. So that becomes the positively charged hydrogen ion. This is chloride ion, bromide ion, iodide ion. Then we have oxide. Now whenever you will be forming writing the chemical formula, you need to know that how much charge not the charge, basically what is the valency, which we'll be studying next, the oxygen has. That oxygen forms oxide ion, sulfide ion, nitride ion. This table is also given in your textbook. You can refer from there as well. I have just written, okay, so that I can make you understand that these are, you can see here, are the mostly are the monoatomic ions, and whenever you will see this category, these are the polyatomic ions. As we discussed कि सारे ions single atoms नहीं होते हैं, ions group of atoms में भी होते हैं, जिसको हम बोलते हैं polyatomic ion. अगर एक ion है जिसमें more than one atom present, is simplest one hydroxide ion, OH, it is having two atoms. Okay, so you can understand here that this is polyatomic ion. These all are the polyatomic ions जिसमें कि more than one atom is there. Fine. Then there is a carbonate group, there is a sulfite, there is a sulfate group, there is a phosphate group. Okay, there is a sulfide group. Don't get confused between sulfite, sulfate and sulfide. Okay, whenever you are going through the ions, then keep this in mind. Sulfite is SO3 2 minus, sulfate is SO4 2 minus, and sulfide is 2 minus charge. Okay, so keep these things in mind. Okay, and I think you need to keep these in mind whenever you're writing chemical formulas. Before that, you should know that. Okay, the next comes is the chemical formulas and valencies. Now, how these are related? First, understand that what chemical formula is. So, when we talk about chemical formula, we have written that it is a simple symbolic representation of the composition of a compound. एक कंपाउंड का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है उसका केमिकल फार्मूला. केमिकल फार्मूला क्या है? किसी भी कंपाउंड का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है. फाइन, कि वो किससे बना है, कौन से एटम्स है, कितने एटम्स है. फाइन. So chemical formula, what does it shows us? Chemical formula shows that how many atoms of an element are present and in which proportion these are present. Fine. ये दो चीजें हमें बताता है. Now, before we write chemical formulas, what we should know? First, we should know the symbols of elements, and second, we should know is the combining capacity of those elements. कि अब ये बताइए कि combining capacity क्या होता है? Now, they will understand combining capacity क्या है? Combine करने का capacity कि कितनों के साथ combine कर सकता है. Like your book has given a very good example here that if we talk about octopus, octopus has 8 arms. And human beings have 2 arms. अगर octopus की 8 arms से number of human beings को हम attach अगर करेंगे तो कितने जुड़ेंगे? एक octopus की arms के साथ 4, उन 4 arms 8 arms पे 4 human beings जुड़ सकते हैं. कैसे? octopus की 2 arms पर मेरे 2 arms, फिर बचे हुए 6 arms पे 3 और लोग. तो इस तरह से क्या हो सकता है? octopus की 8 arms पर 4 ह्यूमन बींग्स अटैच हो सकते हैं. सो ये या कंबाइन हो सकते हैं. सो इसी तरह होता है कि एक जो एटम है
वो कितने और एटम्स के साथ जुड़ सकता है, दैट इज कॉल्ड इट्स कंबाइनिंग कैपेसिटी, या जिसको हम बोलते हैं valency. So what is valency? It is nothing but the combining capacity of an element, कि एक एलिमेंट के एटम कितने और एटम्स के साथ जुड़ सकते हैं. द सिंपलेस्ट वन अगर हम बात करें, जैसे हमने कहा हाइड्रोजन, ये एक और एटम के साथ जुड़ सकता है. अगर हम बात करें कार्बन की, कार्बन के पास 4, अभी कैसे है, अब वी नीड टू अंडरस्टैंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग हियर. वैलेंसी कंबाइनिंग कैपेसिटी है, बट ये कैसे डिसाइड होता है कि वो कितने एलिमेंट्स के साथ, एटम्स के साथ जुड़ सकता है. फाइन, अगर हम बात करें वैलेंसी की, तो ये क्या होता है, हाउ एन एटम विल कंबाइन विद अदर एलिमेंट्स टू फॉर्म, कि वो वैलेंसी में क्या बताता है कि हाउ एन एटम विल कंबाइन विद अदर एलिमेंट्स टू फॉर्म कंपाउंड. सेकेंड थिंग ये बताता है कि किससे जुड़ा है, इट इज रिलेटेड टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटरमोस्ट शेल ऑफ एन एटम, कि एक एलिमेंट के एटम के आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटरमोस्ट ऑर्बिट और शेल ऑफ एन एटम, वो कितने हैं. बेसिकली उसी से वैलेंसी डायरेक्टली रिलेटेड है, और ये पता होने के लिए आपको पहले एटॉमिक नंबर पता होने चाहिए. फाइन, तो जो सिंपल और जो कॉमन एटम्स हैं उनके आप ध्यान में रखिए. फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन है 8 है, कार्बन है 6 है, नाइट्रोजन है कितना है, हाइड्रोजन है 1 है. तो सिंपल वंस 1 to 20 मिनिमम फॉर द 9th स्टैंडर्ड आप याद कर लीजिए. ठीक है. नाउ अब अगर हम बात करें वैलेंसी की, हमने कहा ये रिलेटेड है एक एटम के आउटरमोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है उससे. अब इसको कैसे हम डिसाइड करेंगे, अगर हम बात करें वैलेंसी की और सोडियम की, हमने लास्ट टाइम स्टडी किया था कि सोडियम का जो हमारा एटॉमिक नंबर है वो कितना है 11. दैट मीन्स इट हैज 1 इलेक्ट्रॉन इन द आउटरमोस्ट शेल 281. फाइन, अब ये क्या करेगा टू बिकम स्टेबल, कि 1 इलेक्ट्रॉन दे देना चाहेगा और इट वांट टू बिकम स्टेबल कॉन्फिगरेशन ऑफ 28. फाइन, तो ये इसका जो वैलेंसी है वो हो जाता है 1. That means how many electrons it can give away or receive to become stable. Fine, ये हो जाएगा इसका वैलेंसी. ठीक है. अब ये मत सोचिएगा कि आउटरमोस्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो 1 ही होगा वैलेंसी, ये तो इसके केस में पॉसिबल है. फाइन, अगर हम बात करें क्लोरीन की, क्लोरीन में क्या आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन नंबर प्रेजेंट है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 17. अब 17 का कॉन्फिगरेशन में कितना आ जाता है 2, 8, 7, 2, 8 and 7. सो इसका आउटरमोस्ट ऑर्बिट में तो 7 इलेक्ट्रॉन्स है, तो क्या इसका वैलेंसी 7 होगा? नहीं. ओके, इसका वैलेंसी होगा 1 बिकॉज इट जस्ट वांट टू रिसीव 1 मोर इलेक्ट्रॉन और ये स्टेबल कॉन्फिगरेशन बना लेगा. ओके, सो ध्यान रखिएगा, जनरली हम बात करें तो वैलेंसी वो नंबर है जितने इलेक्ट्रॉन्स एक एटम को चाहिए होते हैं अपना कॉन्फिगरेशन, अपना स्टेबल कॉन्फिगरेशन कंप्लीट करने के लिए, वो होगा उसका वैलेंसी. ठीक है, ध्यान रखिएगा. फाइन, तो यहाँ पर हमारा, इसीलिए मैंने I have written specially for this that you understand or you become clear about this. फाइन, कि सोडियम का भी 1 है, क्लोरीन का भी 1 है. कैसे 1 है? क्लोरीन का तो एटॉमिक नंबर 17 है, पर उसका 1 कैसे हो रहा है, बिकॉज उसको 1 इलेक्ट्रॉन ही चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, तो वो 1 लेगा, स्टेबल हो जाएगा, उसके बाद वो इजीली रिएक्ट नहीं करेगा. फाइन, सो दैट्स हाउ द वैलेंसी इज डिसाइडेड. अगर हम फर्दर बात करें, अब आफ्टर नोइंग द आयंस, आफ्टर नोइंग द वैलेंसी, लेट्स अंडरस्टैंड कि एक जब हम केमिकल फार्मूला लिखते हैं तो क्या बेसिक रूल्स फॉलो करते हैं. ओके, फर्स्ट, द वैलेंसीज और चार्जेस ऑन द आयंस मस्ट बैलेंस. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आयंस जो होते हैं वो बैलेंस होने चाहिए. फॉर एग्जांपल, जैसे हम बात करते हैं सोडियम के ऊपर हमारे को पता है 1 चार्ज है, ठीक है, और क्लोरीन का होता है हमारा -1. तो ये इन दोनों के ऊपर 1 चार्ज है, और ये जब एक कंपाउंड बना लेते हैं तो ये जो चार्ज है वो न्यूट्रल हो जाता है, पॉजिटिव नेगेटिव न्यूट्रल होके इट बिकम्स मीन्स न्यूट्रल हो जाता है, इस पर कोई चार्ज नहीं रहता है. फाइन, तो एक कंपाउंड जो होता है वो हमेशा न्यूट्रल होता है, इट इज नॉट ए आयन. ठीक है, तो दैट मीन्स द चार्जेस शुड बैलेंस. अगर ऐसे हम बात करें, अगर सोडियम की बजाय अगर मान लीजिए
मैं बात करूं कि यहाँ पर मैग्नीशियम जुड़ रहा है, ओके, मैग्नीशियम का ऊपर होता है 2, ओके, इट नीड्स 2 मोर इलेक्ट्रॉन्स, फाइन। अब हम बात करें कि अगर ये एक क्लोरीन के साथ ही जुड़ता है तो क्या इसका चार्ज कंप्लीट, क्या इसके ये न्यूट्रल स्पीशीज हो जाएगा? नहीं, ओके, बिकॉज इट नीड्स 2 इलेक्ट्रॉन्स। अगर इसके पर इसने एक क्लोराइड के साथ ही जुड़ भी गया तो ये न्यूट्रल नहीं बनेगा, तो ये कंपाउंड फॉर्मेशन नहीं होगा। तो ध्यान रखिएगा, क्योंकि कंपाउंड्स जो होते हैं वो न्यूट्रल होते हैं, तो चार्जेस बैलेंस होने चाहिए। ये कैसे होगा? वी आर गोइंग टू स्टडी इन नेक्स्ट डिटेल, फाइन, ओके। अगर हम बात करें, सो वी विल स्टडी इन मोर डिटेल नेक्स्ट। जब हम बात करते हैं एक कंपाउंड जो कि मेटल और एक नॉन मेटल के मिलने से बनता हो, फॉर एग्जाम्पल एक कंपाउंड के अंदर मेटल भी है, नॉन मेटल भी है। द सिंपलेस्ट वन आई हैव टेकन एग्जाम्पल कॉपर ऑक्साइड और सोडियम क्लोराइड, फाइन। इसमें क्या होता है कि जो मेटल का सिंबल है ये पहले लिखा जाता है, जैसे यहाँ पर भी कॉपर को हमने पहले लिखा है। अगर ये आयरन ऑक्साइड है तो आयरन का सिंबल पहले लिखा जाएगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड है एल्यूमिनियम का पहले लिखा जाएगा, और सोडियम क्लोराइड है तो सोडियम में सोडियम का पहले लिखा गया है। ध्यान रखिएगा, जो मेटल अगर है उस कंपाउंड में तो उसका सिंबल पहले लिखा जाता है, फाइन। द नेक्स्ट थिंग वी नीड टू अंडरस्टैंड कि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल है जो आप ध्यान से समझिएगा कि अगर एक पॉली एटॉमिक आयन है जो कि किसी कंपाउंड में प्रेजेंट है तो उसके बाहर हमको ब्रैकेट लगाना पड़ता है। यू कैन सी हियर, हम पहले ब्रैकेट लगाएंगे, उसके बाद उसका नंबर लिखेंगे कि ये पॉली एटॉमिक ग्रुप आयन कितने ग्रुप अटैच्ड हैं, क्या ये एक OH ग्रुप अटैच है या 2 OH ग्रुप अटैच है, फाइन। जैसे कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के अंदर यहाँ पर हमारे 2 ग्रुप्स अटैच्ड हैं मैग्नीशियम के साथ, 2 हाइड्रोक्साइड ग्रुप्स एक मैग्नीशियम के साथ अटैच्ड है, फाइन। यहाँ पर अगर हम बात करें, इसमें भी आप देख सकते हैं एल्यूमिनियम और सल्फेट ग्रुप अटैच्ड है, ये 3 सल्फेट ग्रुप अटैच्ड है एल्यूमिनियम के साथ। तो ध्यान रखिएगा, जब भी पॉली एटॉमिक आयन अगर एक कंपाउंड में प्रेजेंट है उसको ब्रैकेट में लेकर बाहर उसका नंबर लिखा जाता है कि कितने पॉली एटॉमिक आयंस उस कंपाउंड में प्रेजेंट हैं, ठीक, ओके। Now let's study that what is a method of writing chemical formula which is opted. Fine. So there is a very simple thing which are followed in this. Whenever we are writing chemical formula, we have the chemical formula is always giving the simplest ratio of atoms or ions which are present in that substance. Fine. Second thing, sometimes that name is only giving us the information, little bit information about the compound. कैसे होता है? जैसे अगर हम बात करें कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, तो ये क्या कर रहा है, हमें जो वर्ड है, जो नेम है कंपाउंड का, वो इंफॉर्मेशन दे रहा है लिटिल बिट अबाउट द कॉम्पोजिशन ऑफ दैट कंपाउंड। कैसे दे रहा है? फॉर एग्जाम्पल दीज आर सम ऑफ द प्रीफिक्सेस विच आर यूज्ड। जैसे हम बात करें मोनोऑक्साइड, डाइऑक्साइड, ट्राइऑक्साइड, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, सो इफ दीज प्रीफिक्सेस आर देयर, दे आर गिविंग अस इंफॉर्मेशन कि इस कंपाउंड के अंदर कितने एटम्स हैं जो डबल प्रेजेंट है या ट्रिपल प्रेजेंट है। जैसे हम बात करें कार्बन मोनोऑक्साइड की, कार्बन मोनोऑक्साइड, दैट मीन्स ऑक्साइड इज प्रेजेंट 2 times और 1 time, दैट इज मोनो और डाइऑक्साइड। जैसे कार्बन टेट्राक्लोराइड, तो कार्बन के साथ टेट्रा मीन्स 4 नंबर में क्लोराइड ग्रुप प्रेजेंट है, सो दैट बिकम्स कार्बन टेट्राक्लोराइड। इसी तरह हमारे पास ये कुछ प्रीफिक्सेस हैं जो यूज होते हैं नेम्स में और ये हमें कॉम्पोजिशन के बारे में बताते हैं। नाउ नेक्स्ट कम्स इज द बेसिक टेक्निक ऑफ राइटिंग द फॉर्मूला। फॉर्मूला लिखने के लिए हम क्या टेक्निक है, क्या मेथड है जो फॉलो करते हैं। सो दिस इज रिटन एज दिस वन। कैसे? फिर इसको हम कहते हैं SVS-DF मैथड। इसको आप शॉर्ट में कहेंगे SVS-DF मैथड। याद कर लीजिएगा। सो इट्स देयर विल बी नो कंफ्यूजन व्हाइल राइटिंग द फॉर्मूला। क्या कहते हैं इसे? SVS मैथड, SVS-DF मैथड, SVS-DF मैथड, फाइन। अब S से यहाँ मतलब क्या है? फर्स्ट स्टेप इज राइट डाउन द सिंबल्स। ओके, हम क्या करते हैं, सबसे पहले लेते हैं सिंबल्स और सिंबल्स को लिख देते हैं। जो एलिमेंट्स उस रिएक्शन कंपाउंड का पार्ट है उनके सिंबल्स लिख देते हैं। सेकेंड स्टेप में क्या करते हैं? V, दैट इज राइट डाउन द valencies।
हम लिखते हैं वैलेंसीज की, उस एलिमेंट की कितनी वैलेंसी है। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन है तो 1 वैलेंसी है, ऑक्सीजन है तो 2 वैलेंसी है, उसको हम उसी एलिमेंट के सिंबल के नीचे लिखते हैं। फाइन। नेक्स्ट आता है कि हम स्वैप करते हैं, वैलेंसीज को क्रॉस करते हैं। ओके। थर्ड स्टेप आता है कि डिवाइड, क्योंकि हमने कहा कि केमिकल फॉर्मूला क्या है, ये सिंपलेस्ट रेशो है जिस बताता है जिसमें एक कंपाउंड में एलिमेंट्स प्रेजेंट है। फाइन। सो ये अगर हम किसी कंपाउंड के फॉर्मूला को सिंप्लीफाई अगर कर सके तो सिंप्लीफाई करते हैं। उसके लिए हम क्या करते हैं, वी डिवाइड बोथ द साइड्स बाय द स्मॉलर नंबर ऑफ द टू नंबर्स। ओके। बट अगर किसी कोई एक एटम सिंगल नंबर में प्रेजेंट है, फॉर एग्जाम्पल H2O में ऑक्सीजन अगर सिंगल है तो हम इसको और सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, तो उसमें ये डिवाइड वाला स्टेप होने का कोई मतलब नहीं होता। ठीक है, वी कैन डायरेक्टली राइट द फॉर्मूला। और डिवाइड के बाद आता है F, राइट, दैट मीन्स राइट द फॉर्मूलाज। सो अगर आपने ये SVFDF मैथड याद रखा तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा whenever you are writing any chemical formula। अब इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल यू आर राइटिंग द फॉर्मूला ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड, मुझे मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला लिखना है। फॉर एग्जाम्पल फाइन, मैंने लिखा सबसे पहले सिंबल मैग्नीशियम का और ऑक्सीजन का सिंबल, फिर हमने लिखा उसका वैलेंसीज, जो कि यहाँ पर आप पॉजिटिव भी लिख सकते हैं या आप नेगेटिव लिख सकते हैं या आप सिंपल नंबर लिख सकते हैं। ठीक है, अब मुझे करना है यहाँ पर इसको स्वैप, इसको हमने 2 को इधर और इस 2 को इधर करना है। यहाँ पर आपको समझ इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि दोनों का वैलेंसी सेम है, बट जब भी जिन भी एटम्स में डिफरेंट होता है वहाँ पर एक्सचेंज हो जाता है। अब देखिए, अगर हमने कहा कि इसको स्मॉलेस्ट नंबर से डिवाइड करना होता है, तो 2 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल्स टू 1, एंड दैट मीन्स सिमिलर विद द ऑक्सीजन 2 डिवाइडेड बाय इज इक्वल्स टू 1। तो इसीलिए हमने इसको लिख दिया है MgO। अदरवाइज अगर आप इसको डिवाइड वाला स्टेप नहीं करते तो क्या आता था, ये Mg2O2 आता था। ये क्या आता था, Mg2 एंड O2। बट हमने कहा कि ये नहीं लिखकर हम लिखते हैं MgO, बिकॉज ये जो केमिकल फॉर्मूला है ये क्या है कि सिंपलेस्ट रेशो शो करता है जिसमें वो एलिमेंट्स जुड़े हुए हैं। फाइन, लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कार्बन टेट्राक्लोराइड की, जैसे हमने कहा था अभी कि सबसे पहले हम लिखेंगे वैलेंसीज, सबसे पहले सिंबल्स कार्बन, क्लोरीन, फिर हम लिखेंगे वैलेंसीज। कार्बन का वैलेंसी 4 है, ये आपको याद रखना होगा बिकॉज कार्बन एटॉमिक नंबर इज 6, 2 एंड 4, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 है। 4 के बाद उसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 4 और चाहिए, सो इसका वैलेंसी हो जाता है 4। एंड क्लोराइड का क्या है, क्लोरीन को 2, 8, 7 है, दैट मीन्स उसको एक और इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, तो उसका वैलेंसी है 1। फाइन, तो ये हो जाता है 1। अब हमें करना है यहाँ पर भी वैलेंसी को स्वाइप, तो ये 4 आ जाता है इधर और हमारा 1 आ जाता है इधर। ओके, सो अब ध्यान रखिएगा, इस तरह से इधर हमने इसको क्रॉस कर दिया या स्वैप कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम सिंपलेस्ट नंबर से डिवाइड करते हैं, जैसा कि हमने कहा था, अगर एक भी वैलेंसी 1 है तो उसको हम फर्दर डिवाइड कर ही नहीं सकते अगर, तो इसलिए हम 4 को अगर 1 से डिवाइड करते हैं दैट बिकम्स 4, एंड 1 डिवाइडेड 1 इज ऑलरेडी 1, सॉरी। सो अगर हम इसके फॉर्मूला की बात करें तो ये हमारा बन जाता है कार्बन टेट्राक्लोराइड, दैट मीन्स CCl4। फाइन, दैट्स हाउ द फॉर्मूला ऑफ दिस कार्बन टेट्राक्लोराइड इज रिटन। नाउ नेक्स्ट कम्स इसकी, ये तो थे सिंपल कंपाउंड्स जहाँ पे मोनो एटॉमिक आयंस ही प्रेजेंट है। ओके, अगर हम बात करें ऐसे कंपाउंड्स की जिनमें ग्रुप आयंस या पॉली एटॉमिक आयंस प्रेजेंट हैं, तो इनका फॉर्मूला कैसे लिखते हैं। फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की। अब यहाँ पर सबसे पहले हमने लिखा सिंबल कैल्शियम एंड हाइड्रोक्साइड। ध्यान रखिएगा यहाँ पर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन सेपरेट नहीं है, ये एज ए वन स्पीशीज एक्ट करते हैं या वन केमिकल एंटाइटी की तरह रिएक्ट करते हैं। फाइन, तो यहाँ पर हमारा जो हाइड्रोक्साइड ग्रुप है इसका वैलेंसी होता है 1, हमारा कैल्शियम का होता है 2। थर्ड स्टेप हमने किया स्वैप, वैलेंसीज को एक्सचेंज कर दिया है एंड इसको सिंपलेस्ट डिजिट से डिवाइड किया 1, एंड नेक्स्ट हमारा आ जाता है Ca,
जैसा कि हमने रूल कहा था, हम पहले पॉलीएटॉमिक आयन को ब्रैकेट में डालते हैं, सो हमने ब्रैकेट लगा दिया एंड फिर हमने बाहर लिखा है इसका नंबर कि हाइड्रोक्साइड आयन कितने प्रेजेंट हैं, दैट इज 2। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं, एक और एग्जांपल देते हैं, फॉर्मूला ऑफ सोडियम कार्बोनेट। फाइन, सोडियम आपको पता है, सबसे पहले हमने लिखा सिंबल, फिर हमने लिखा वैलेंसी, थर्ड हमें लिखना है वैलेंसी को स्वैप करना है, ओके, थर्ड एंड फोर्थ हमें इसको डिवाइड करना है एंड फिफ्थ लिखना है हमें फॉर्मूला। अगर हम बात करें सोडियम कार्बोनेट की, सोडियम का वैलेंसी 1, कार्बोनेट का वैलेंसी 2 माइनस है, इनको हमने स्वैप किया और फिर फॉर्मूला आ जाता है हमारा Na2CO3। अब आप यहाँ क्या देख रहे हैं, ध्यान रखिएगा, क्योंकि सोडियम यहाँ पर एक एलिमेंट है, तो इसका नंबर जो होता है वो तो हम लिख देते हैं ऐसे। अगर हमारे जो पॉलीएटॉमिक आयंस हैं, अगर वो 1 नंबर में प्रेजेंट है, जैसे कि यहाँ कार्बोनेट 1 ही है, तो हमने इसको कोई ब्रैकेट नहीं लगाया है। ठीक है, जब हमारे पॉलीएटॉमिक आयंस मोर देन 1 नंबर में प्रेजेंट है तो हम उसको ब्रैकेट में लेकर बाहर हम उसका नंबर लिखते हैं। ठीक है, कि वो 2 है, 3 ग्रुप से अटैच्ड है, 4 ग्रुप से अटैच्ड है, 5 ग्रुप से अटैच्ड है, वो हम उसको बाहर लिखते हैं। ठीक है, लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल। अगर हम बात करते हैं अमोनियम सल्फेट की, अब यहाँ पर देखिए ये अमोनियम भी ग्रुप है, सल्फेट भी ग्रुप है। फाइन, अगर हम बात करें इसकी, तो इस ग्रुप पर होता है +1 चार्ज और सल्फेट होता है 2- चार्ज का एंटाइटी। फाइन, अगर सेम वहाँ पर, यहाँ पर भी हम सेम कर रहे हैं, इनका वैलेंसी को स्वैप कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं सिंपलेस्ट नंबर से, और जो हमें मिलता है वो है अमोनियम सल्फेट। अब आप यहाँ पर ये भी देख रहे हैं कि हमने डोंट थिंक दैट हम सेकेंड स्पीशीज को या इसी को करते हैं यहाँ पर, बिकॉज अमोनियम ग्रुप इज प्रेजेंट इन 2 नंबर, तो हमने इसके बाहर हमने 2 लिख दिया है और देन सल्फेट इज अटैच्ड, सो ये हमारा बन जाता है कंपाउंड अमोनियम सल्फेट। ओके, hopefully by now this compound writing is clear, this compound formula writing will be clear to you। अगर नहीं समझ आया हो, let's recapitulate once। हमें क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं, मेथड है हमारा SVSDF मेथड। सबसे पहले लिखे जाएंगे सिंबल्स, फिर लिखे जाएगी वैलेंसीज के बाद स्वैप होगी, वैलेंसीज क्रॉस होगी, फिर हम डिवाइड करेंगे उसको सिंप्लीफाई करने के लिए, एंड लास्ट में लिखा जाएगा फॉर्मूला। सो ये हमारा जो SVSDF मेथड है, अगर आप इसे फॉलो करेंगे तो केमिकल फॉर्मूला लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यू जस्ट नीड टू नो द सिंबल्स and the composition, the number of atoms involved in the polyatomic ions and the charge over them. ठीक है, और symbols are easy. I think you all know about the basic symbols of elements which are involved. Fine, thank you for today. And if you have any question left related to this, write to me in the comment box. You can ask me anytime. If you have liked the video, share it with your friends, hit the like button and subscribe to channel, because I'm constantly making such videos so that you can enjoy your learning. Fine. Thank you for watching. Take care.